So now you can see the screen, right? Right. Uh, completed this part. We are here. Yes, you can harness the power. See, अच्छे मैजिक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स के लाइफ में भी ब्रेकडाउन्स होते हैं, हर चीज में होते हैं, हर वक्त होते हैं. हाउ यू डील विद इट without losing your gratitude, without going below the line, is how you come out of it. I don't know why this happened. We tried to log in from the original computer, original device, but it just didn't click at that time. And as soon as I found an alternative without going below the line, this again started working. So I exactly, we don't know what happened, but yes, I had full support from my better half. He was awake with me since 5:10. He's awake and he's been helping me. So sweet. अपने आप को mute करिए. So it's just life experiences. You have to move with it instead of being chirchida and saying that and complaining and start complaining. It's just an example. अगर possible हुआ तो please आज हम थोड़ा extend कर लेंगे. अगर possible हुआ आप लोगों के लिए तो yes. That's first part. I think I won't be able to upload today. Rest everything will be there. Yes, you can harness the power of. Now to amplify into, we have to start from here now. You can harness the power. So start from yes. Okay. You can harness the power of good feelings to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of feeling, take charge of it and deliberately intensify it. It is so you feel as you good as you can. To amplify enthusiasm level in the feeling of enthusiasm, milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. When you feel passion or excitement, you feel in those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feelings, the greater the love you give, and the result you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. So ये जो basically अब हमें बताना चाह रही है, she's trying to tell us about how you can pump up the volume in anything and everything. So first let us finish this paragraph, then we will talk with an example and try to understand it in a better way. When you are feeling. When you're feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spend several minutes amplifying my good feelings. To amplify my good feelings, I thought about all the things I love. I counted the things I love non-stop, one after the other. My family, friends, home, flowers in the garden, the weather, colors, situations, events, and things I love that happened during the week, month, or year. I kept listening everything I love in my mind until I felt amazing. Then I sat down to write. It is so easy as that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. So what Rhonda Byrne is telling us in first paragraph is to amplify our feelings for anything and everything, whatever we are trying to do. For an example, आप suppose करो आप कुछ बना रहे हो किचन में, like for a simple thing, let us take पकौड़ी का example. तो आप पकौड़ियाँ बना रहे हो, weather अच्छा है, बारिश हुई है and आपने पकौड़ी बनाई है. अब पकौड़ी के साथ में आप चटनी बनाओगे ही बनाओगे, दैट इज ओके. लेकिन अगर आप उसे एम्पलीफाई करना चाहते हो तो उसको जब आप यू आर सर्विंग इट अगेन किसी का भी. What have you done to your hair? Lovely hairstyle. Please mute yourself, whoever it is.
अगर आप उसके साथ में 2-3 और रकम की चटनी बना लो, उसके साथ में थोड़ा सा और स्नैक्स रख दो साइड में सर्व करने के टाइम में, या आप उसके साथ में कोई अच्छी सी कोई अच्छा सा शरबत बना के दे दो, या चाय भी ऐड कर लो उसमें, तो दैट एम्पलीफाइज योर सर्विंग पार्ट, एंड जिसे आप सर्व कर रहे हो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक कि आपको कहीं जाना है, maybe to your sister-in-law place, let us take that for an example। और एक होता है कि आपने बस जैसे आप हो वैसे आप निकल गए कि ठीक है जाना है, वही तो जाना है, क्या जरूरत है कुछ भी चेंज करने का। और टेक योर मदर्स हाउस, बिकॉज सिस्टर इन लॉ के प्लेस में तो आप फिर भी थोड़े से रेडी होके चले जाओगे, बट अगर आपको अपने मम्मी के घर जाना है तो जनरली व्हाट वी डू, वी डोंट गेट रेडी, वी जस्ट लीव। बट इसी के जगह में अगर आप थोड़े से अपना अ, अ, कपड़े चेंज कर लेते हो, यू वेयर समथिंग नाइस, आप घर के कपड़े में जिसमें आप बैठे हो उसमें नहीं निकलते हो, यू कोम योर हेयर्स प्रॉपर्ली, यू टाई देम अप, और यू मेक सम जूड़ा और समथिंग, एंड देन यू चेंज योर ज्वेलरी ऑल्सो कि ठीक है हर वक्त ये पहनते हैं, चलो आज कुछ और पहन के चलते हैं। तो आई एम श्योर योर मदर विल बी लाइक सरप्राइज्ड, और शी विल रियली कमेंट, या आपकी भाभी होगी या कोई भी आपको जरूर बोलेगा कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जस्ट ट्राई इट। तो ये हुआ अगेन वन काइंड ऑफ एम्पलीफिकेशन। अगेन जैसे इफ यू आर सेंडिंग टिफिन टू, आप अगर टिफिन पैक करते हो अपने हस्बैंड के लिए, अगर नहीं भी करते हो तो हाउ कैन यू एम्पलीफाई दिस द रिलेशनशिप बिटवीन यू टू। See, I have been doing this for a long time now. This is my personal experience. मुझे लव इज करके एक नोट आता है, जो पहले स्टेट्समैन जो कलकत्ता में रहते हैं शायद दे कैन आइडेंटिफाई विद इट ऑल्सो। स्टेट्समैन में एक कॉलम आता था लव इज करके, उसमें लव इज एंड उसके नीचे में दो, एक लड़का एक लड़की बने हुए रहते थे, कार्टून करेक्टर था, एंड उसके साथ में एक कोटेशन रहता था। तो आई हैव गिवन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव इज टू माय हस्बैंड, उसके कभी उसके पॉकेट में, कभी उसके डायरी में डाल देती थी थिंग्स टू डू वाले में, कभी उसके पर्स में रख देती थी, एंड देन व्हेन ही यूज्ड टू सी देम he used to smile and he used to call me। so this is again an example of amplification। आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, just amplify it, pump up the volume, it is in your hands। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो आई होप यहाँ पे जो भी है सब एडल्ट्स है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको आज यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू हैव एन इंटरकोर्स इन द राइट, now it is an on you, you can have it in a simple way, or you can amplify it by creating a scene in your room, by lighting candles, by igniting some perfumed incense ka sticks, getting ready yourself in some kind of sexy lingerie. It is all on you how you amplify what you are doing. I've given you different kind of examples for that. Just try to connect with any one of it. नेक्स्ट इज, जब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों को बोलना चाह रही है कि जब ये बुक लिखने वो बैठी थी उसके पहले शी ट्राइड टू काउंट हाउ मेनी थिंग्स शी लव। तो आज का असाइनमेंट आप लोगों को मिल गया है, यू विल ट्राई टू राइट डाउन, नॉट मेंटली आप याद नहीं करोगे, यू विल ट्राई टू राइट डाउन, अपने जर्नल में आप एक पेज पे लिखना स्टार्ट करोगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज से प्यार है, क्या क्या चीज आप चाहते हो। स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल योर फेवरेट थिंग्स, ऑफ ऑल द थिंग्स यू लव। इट कैन बी इन एनी फॉर्मेट, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट जब आप याद करते हो, जब आप याद करते रहते हो, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है आपके लाइफ में, कुछ भी ब्रेक डाउन होता है, एंड यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग द थिंग्स, ओके आई लव रेड रोजेस, अच्छा मुझे कोल्ड कॉफी पीना पसंद है, अच्छा आई लव टाइगर्स, अच्छा मुझे जंगल में मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, अच्छा मैं ये सिटीज गई हूँ। You start remembering, you're just sitting down, you're not doing anything, but you're recalling the times when you're recalling the things you love। अपने आप आपका मूड अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है। You cannot stop it from uplifting yourself because it is natural। जब आप अपने फेवरेट चीजों के बारे में याद करते हो तो आपका मूड अपलिफ्ट होगा। जैसे कि आपकी कोई फेवरेट मेमोरी है, अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू फील जॉयफुल। इट इज एज सिमिलर एज दैट। या आपके जो पसंदीदा कलर्स है, आपके जो पसंदीदा फ्लावर्स है, यू शुड हैव देम इन द बैक ऑफ योर माइंड। दैट विल हैपन ओनली इफ यू राइट देम डाउन समवेयर। मेंटली आप जितना भी पढ़ लो कर लो, आपको भूलने की आदत है, आप भूलोगे ही भूलोगे। This is what she did।
I thought about all the things I love. I counted the things I love non-stop, one after the other. आपके फैमिली के जो मेंबर्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, योर फेवरेट फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड का नाम, आप घर में आपकी क्या पसंद की चीजें हैं, या आपका कोई फेवरेट हाउस है। लोगों के 2-3 घर भी होते हैं। स्पेशली ये बाहर वालों की आदत होती है कि यहाँ पे एक टाउन हाउस है, वहाँ पे सिटी में एक पेंट हाउस है, तो इट इज फॉर देम एग्जाम्पल। एंड फ्लावर्स इन द गार्डन है। आपका कौन सा फेवरेट वेदर है, वेदर यू लाइक विंटर और समर और स्प्रिंग और रेनी टाइम और sunny day, whatever you like you can note down. You have to start pointing out things for yourself. आपको माउंटेन्स पसंद है कि बीचेस पसंद है कि वैलीज पसंद है, या सो मेनी थिंग्स टू चूज फ्रॉम। ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको याद आती है, इवेंट्स जो आपके बहुत करीब है, जहाँ आप गए, आपने अटेंड किया एंड यू लव्ड इट। जैसे आई अटेंडेड अमिताभ बच्चन का program at Kala Mandir long time back, but it is still I remember it very clearly. It just flashes in front of me. तो ऐसे ही करके whatever you have done, जैसे फिर मैंने अरिजीत सिंह का एक कॉन्सर्ट बैंगलोर में अटेंड किया था, तो all those things you have to keep remembering them to pump up the volume. कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो, remember that. कुछ भी आपके साथ में you are below the line या you have facing some breakdowns, remember those things, those times when you were very happy or what makes you happy. And जब उन्होंने ये सब किया, तो I kept listing everything I love in my mind. She is saying in my mind, but I would prefer कि आप अपनी लिस्ट बना लो। आपकी फेवरेट मूवीज है, आपके फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना सकते हो आप। जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। Until I felt amazing. This is what happened with her. वो करती गई जब तक कि उनको वो अमेजमेंट की फीलिंग नहीं आई, एंड उसके बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया, and the result was mind blowing. You have it in your laptop screen right now. You are reading from it, and you're trying to understand the book. That is what happened. Okay. Your feelings reflect what you're giving. You can tell right now in the major areas of your life whether you have been giving more good feelings or more bad feelings. How you feel about each subject in your life, such as money, health, your job, and every individual relationship is an exact reflection of what you have been giving out on each subject. सो दिस इज कि अगर आप अपने लाइफ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे गुड फीलिंग्स दी है और कहाँ पे बैड फीलिंग्स दी है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ, अगर आपके रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छे है, जैसे he got up for me at 5 with me, along with me, he was struggling alongside with me to make my breakdown go, and he was trying to do all everything. He tried his laptop in a way, it was हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि I have decided to use his device वहाँ पे ट्रिप पे, तो it was a lesson for us कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ रही हूँ for your information. I am trying to find some positivity in that also. तो वो उसने किया, ऐसा क्यों किया उसने? What pulled him to do all this for me? It was because I have given my love भर भर के मात्रा में। I have given the power of love to that relationship. तो आज मुझे एक सेकंड का भी संकोच नहीं हुआ उनको 5 o'clock उठाने के लिए एंड यहाँ पे उनको बिठाने के लिए। तो this is how you can check in your every area. You will know. There is no one else who will tell you कि ये रिलेशनशिप आपका अच्छा है या खराब है। आपके पास अगर पैसा है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आप जॉब में अगर आप सेटिस्फाइड हो तो क्यों हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो। दिस इज ऑल फॉर यू टू डिसाइड, यू विल फाइंड इट आउट। अगर आप हमेशा अपने जॉब के लिए ग्रम्बल करते हो एंड आपके बॉस आपसे खुश नहीं है, तो यू नो ऑलरेडी व्हाई दिस इज हैपनिंग after reading this book, because you have been grumbling about your job, about your desk, about your laptop, maybe about your colleagues, maybe about the building that the office is in. Anything you have been complaining about it. That is why you're not maybe you're not doing your 100% also in that job field, and that is why you're lagging behind in that area.
तो अगर आपके पास आप उसे नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो किसी भी तरीके से, तो वहां पे आपको वैसा ही कुछ माहौल मिल रहा है। तो आपको पता है आज ये पढ़ने के बाद में कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर गिविंग योर नेगेटिविज्म टू दैट पार्ट। यस। When you think about money, your feelings reflect what you are giving about money. If you feel bad when you think about money because you don't have enough, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money because that is the negative feeling you are giving. हाँ, तो अब ये मैंने रिलेशनशिप के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है ये चीज। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। सी यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मनी इज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इसमें ही सबसे ज्यादा जल्दी आपको ब्रेक थ्रूज दिखते हैं। इसमें ही सबसे ज्यादा जल्दी ब्रेक थ्रू दिखते हैं जब आप इसको करते हो ठीक से। इसके बारे में अगर आप गुड फीलिंग्स ले आते हो, ग्रैटिट्यूड ले आते हो, ग्रैटिट्यूड इज अ की, वो आपको बाद में आएगा पावर बुक में भी। लेकिन यहाँ पे बिकॉज 90% ऑफ ऑल ऑफ अस हैव डन मैजिक बुक एंड वी आर हियर, तो वी ऑलरेडी नो कि ग्रैटिट्यूड इज द की, वन ऑफ द मेजर कीज। तो वो अगर आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिए हो और अगर आप उसमें फीलिंग्स डालना शुरू कर दिए हो, तो मनी में आपको सबसे जल्दी रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। इसके लिए मैं इतना ही बोलूंगी कि बचपन से मैंने कभी मनी के लिए एज सच कंप्लेन नहीं किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट एरिया। मतलब आई हैव सीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय मदर यूज्ड टू कंप्लेन अ लॉट अबाउट मनी। शी डजंट हैव एनी डेफिशिएंसी, बट उनकी आदत है। एंड वहीं पे जैसे आई वाज देयर, तो हाँ, देयर वाज अ टाइम कि मुझे मेरे दादाजी ने बुला के बोला था कि आई विल बी गिविंग यू एवरी मंथ 3000 रुपीज। दिस इज लाइक 30 years बैक। आप सोच लो 3000 रुपीज वो दे रहे थे मुझे हर मंथ। एंड इट वाज, आई वाज एट दैट टाइम ऑल्सो आई वाज वेरी हैप्पी कि वाओ आई हैव सो मच, मतलब लॉट एंड लॉट ऑफ मनी। 3000 वाज अ बिग अमाउंट एंड सेविंग के लिए नहीं था वो मनी, इट वाज जस्ट आपका पॉकेट मनी टाइप। उसी समय नया नया ट्रेंड आया था एंड माय ग्रैंडफादर वाज लाइक कि ठीक है बच्चों को देना चाहिए। तो all of us, all the kids in the house were getting that amount. It was nothing कि I was getting, but all of us were getting. And हम लोग lavishly we have enjoyed our that period 3000 में college time and school time से start हो गया था 11th 12th से, and college time के तक वो continue था, मतलब शादी तक वो continue था। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। जब मैं कल ये चीज पढ़ रही थी अपने आप एंड आई वाज प्रिपेयरिंग, तो आई वाज लाइक कि उस समय जो मैंने इतनी खुशी या इतना पॉजिटिविटी दिखाया है, शायद उसके लिए आज मेरे पास भर भर के है। आई नेवर फील। एंड देन इन मनी ऑल्सो आई विल डिस्कस कि वेन एवर आई हैव गिवन आई हैव गॉट बैक, मतलब 100 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट मैंने 5000 दिए तो मुझे तुरंत 50,000 भी मिले हैं। That is what I have seen in my life. तो दिस मैजिक, मनी के रिलेशन में मैजिक या पॉजिटिविटी बहुत जल्दी देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास में मनी के ऊपर में पॉजिटिविटी है, तो आप ऐसे सर्कमस्टांसेस अपने आप क्रिएट होंगे तो कि आपके पास में और आएगा। और अगर आप उसके लिए कुछ भी बुरा महसूस करते हो, फील करते हो, तो इट्स डिफिकल्ट। यूनिवर्स विल नॉट गिव यू। यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, आपको जो सब्स्टिट्यूट करना है आप कर लीजिए, बट दिस इज हाउ द सर्कल वर्क्स। यस, व्हेन यू थिंक अबाउट योर जॉब, When you think about your job, your feelings tell you what you are giving about your job. If you feel good about your job, you must receive back positive circumstances and experiences in your job because that's the positive feeling you're giving. When you think about your family, health, or any subject that is important to you, your feelings tell you what you're giving. Be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. Neville Goddard, Neville Goddard, 1905. 1972, New Thought author. So Life what, isn't. just a second, मीला जी. So what they are trying to tell us कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, मनी के बता दिया, जॉब के लिए बता दिया. I have already given you
तीनों एग्जाम्पल्स अपने तरीके से कि कैसे आप देखते हो क्या हो रहा है. नाउ टू कम टू दिस कोट, be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. अगर आप जैसा आपकी फीलिंग्स है, आपके जो आसपास की दुनिया है, वो आपकी उस फीलिंग से कनेक्टेड रहती है कभी भी. अगर आप पॉजिटिव हो, आपके आसपास की दुनिया पॉजिटिव रहेगी. अगर आप नेगेटिव हो, आपके आसपास की दुनिया नेगेटिव रहेगी. आप नेगेटिव हो अपने रिलेशनशिप में, आपके आसपास की जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिविटी आपको देंगे ही देंगे. डायरेक्ट कनेक्शन है एकदम. आप अच्छे मूड के साथ बाहर निकले हो, यू विल फाइंड एवरीथिंग टू योर लाइकिंग. आपके वेदर, आपका वेदर भी, यहाँ तक कि आप वॉकिंग करने गए हो बाहर, वेदर भी आपके मनपसंद, आपका मनपसंद हो जाएगा. एंड यहीं पे अगर आप बुरे मूड से गए हो, तो you will be the first person to complain about the weather. You will start from the weather and then you will go forward with it. अपने ऊपर आप ट्राई करके देख लीजिए, हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि हम, छोटी सी चीज है वेदर, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसकी कंप्लेन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. यस, लाइफ इज, Life isn't happening to you. Life is responding to you. Life is your call. Every area of your life is your call. You are the creator of your life. You are the writer of your life story. You are the director of your life movie. You decide what your life will be by what you give out. जस्ट अ सेकेंड बेला जी. तो यहाँ पे ये हमें बोल रहा है कि लाइफ, जो आपकी लाइफ है उसे आप बना रहे हो. जिंदगी आपको नहीं बना रही है, जिंदगी आपको नहीं चला रही है. जो हम बोलते हैं कभी भी कि बस जिंदगी है, चला रही है जैसे चल रहे हैं, ये गलत है. जिंदगी आपको, आपकी जो जिंदगी है उसे आप बना रहे हो. यू आर योर ओन डायरेक्टर, यू आर योर ओन राइटर. आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हो. आप उसमें जो चाहते हैं आप वो लिख रहे हो. अगर आपको ड्रामा चाहिए तो आप अगर आप ड्रामा ट्रैक कर रहे हो तो आप ड्रामा लिख रहे हो. अगर आपको उसमें कॉमेडी चाहिए तो आप उसमें कॉमेडी लिख रहे हो. इफ यू वांट अ रोमांटिक कॉमेडी, यू आर राइटिंग दैट. यू आर क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी ऑफ योर लाइफ. सेकेंड असाइनमेंट फॉर यू ऑल इज कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी लाइफ की स्टोरी चल रही है वो किस टाइप की स्टोरी चल रही है और आप उसे कैसा बनाना चाहते हो. फ्रॉम नाउ ऑन यू विल टेक द डिसीजन कि आपकी लाइफ स्टोरी किस तरफ मुड़ेगी. हो सकता है कि आपकी लाइफ अभी तक में इट्स मोर ड्रामेटिक. ओके, सो नाउ यू वांट इट टू बी मोर रोमांटिक और मोर कॉमेडी और मोर फनी. तो आपको किस, अभी तक कैसी चल रही थी और अब आपको उसे किस तरफ लेके जाना है, दैट इज योर डिसीजन. यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, राइट इट डाउन. आप शेयर करना चाहते हो शेयर करो, आप नहीं शेयर करना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. बट जस्ट आइडेंटिफाई कि किस टाइप की लाइफ आप जी रहे हो और किस टाइप की आपको चाहिए, आप कैसी चाहते हो, ताकि यू कैन नाउ स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी. अपनी जिंदगी की स्टोरी आप उस तरीके से लिखना शुरू कर दो. यस, There are infinity levels of good feelings you can feel, which means there's no end to the heights of the life you can receive. There are also many levels of bad feelings that become increasingly negative, but which bad feelings there is a bottom limit beyond which you can't endure, which forces you to choose good feelings again. दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड यहाँ पर कि एक लिमिट होती है जहाँ तक वी कैन एंजॉय बैड फीलिंग्स एंड उसके बाद में हम वापस गुड फीलिंग्स में चले जाते हैं. सो हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर इज बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ फेरिस व्हील, या फिर वो जो जायंट व्हील जिसे हम बोलते हैं. आई होप एवरीवन इज फेमिलियर विद दैट. अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप किसी भी अगर पार्क में गए हो, या नॉट पार्क एग्जैक्टली, दोज बिग पार्क्स जो अपू घर टाइप्स जो पार्क होते हैं, वो वाले पार्क में अगर आप गए हो, या फिर आप किसी मेले में, कैलकटन्स कैन आइडेंटिफाई इट वेरी नाइसली. आप लोगों ने तो 4 वाला भी फेरिस व्हील देखा होगा. वहां पे दुर्गा पूजा में, मेले में हमेशा रहता है. तो सेम वे में हमारी फीलिंग्स वर्क करती है. आप जब सबसे ऊपर होते हो उस फेरिस व्हील के, आई होप बेला जी आर अंडरस्टैंडिंग अ फेरिस व्हील.
हाँ 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 एकदम। हाँ, तो आप मुझे बताओ कि जब सबसे ऊपर वाले स्टेज पे आप होते हो तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर ऑन दैट फेरिस व्हील और वो सबसे ऊपर गया हुआ है? सी आई विल टेल यू, जो जो एग्जैक्टली जो फेरिस व्हील होता है, जो बड़ा वाला होता है, इट मूव्स वेरी स्लोली। एंड जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो थोड़ी देर रुकता है वहां पे फॉर ईच पर्सन। और जो छोटे वाले होते हैं, जो चार वाले होते हैं, दे मूव वेरी फास्ट। देयर इज अ डिफरेंस इन दिस। तो बट लेकिन जब हम ऊपर में रहते हैं तो वी फील लाइक व्हाट, लीला जी? We feel like you don't want you come down, you know, लगता है वहीं पर ही रुको थोड़ी देर के लिए. यस, It's a यस, very nice feeling and you can see the whole मेला whatever, you know, व्हाटएवर, पूरा यस। दिखाई तो देता है. हाँ, so it is a very nice feeling. I don't feel like going down कि नहीं यहीं पे रुके रहो थोड़ी देर. Yes, you That feel feeling on is the there. top of the world, एक्चुअली Yeah, देखा top of जाए the तो world. टॉप Yeah, ऑफ द yeah. वर्ल्ड इज द फ्रेज। Hmm. तो आप वहां पे वैसा फील करते हो, लेकिन कुछ भी हमारे लाइफ में स्टैग्नेट नहीं होता है। तो वहां पे पहुंचने के बाद में ऐसा सर्कमस्टांसेस आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपको नीचे पुल करेंगे। जैसा कि वो चार वाला जो होता है ना, दैट इज मैन्युअली ऑपरेटेड। पहले तो मशीन्स नहीं थे, तो वो जो लगते थे तो वो मैन्युअली। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ऊपर पहुंचता है, एक आदमी उसे नीचे खींचता है, एंड जब वो नीचे आता है तो एक आदमी उसे पुश करता है ऊपर, एंड विद दोस मोमेंटम द फेरीज विल कीप मूविंग मूविंग मूविंग। जो नीचे है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आता है। तो आपको वहां पे ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, ब्रेकडाउन्स होंगे आपकी लाइफ में, जो आपको नीचे खींचेंगे। आप नीचे खींचोगे, आप नीचे आओगे, और नीचे आते 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 यू विल टच द बॉटम। बॉटम में पहुंचने के बाद में, दिस इज वेयर द क्रूशियल पार्ट स्टार्ट्स। यहाँ पहुंचने के बाद में देयर आर मेनी पीपल हु कमिट सुसाइड, who give up on their life because they don't get a push at the proper time from someone or some circumstances. That is why we need our magic buddies. जैसा कि मैंने बोला था कल, आपने आज बात करेंगे मैजिक बडीज के बारे में। This is the part where the magic buddies role come into play strongly, strongly. That is the point where you give up. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं रहती है। जब आप ऊपर थे तो आप नीचे आए, तो जब आप नीचे हो तो अपने आप ऊपर जाओगे ही जाओगे, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू कैन नॉट गो मोर बिलो द लाइन। लेकिन जब आप गिव अप कर देते हो, you stop your inner, आप स्ट्रेंथ नहीं रखते हो अपने अंदर में, you give up and then that is where the depression comes in. And when the depression sets in, then that is when you submit to the वो काला रोशनी को, वो काले डॉट को आप सबमिट कर देते हो होल हार्टेडली, एंड यू लूज एवरीथिंग व्हाटएवर वाज डियर टू यू बाय जस्ट फिनिशिंग योर्स। We will not talk about it further. Just was just to explain to you all ki what exactly happens with us. ये Ferris wheel का example was the best example. So always try for the push. Always wait. Always try. इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा लाइन के अबव रहो। लाइन के अबव रहोगे तो आप इतने नीचे डिस्पेयर तक जाओगे ही नहीं कि आपको वो सिचुएशन आए। एंड ऑलवेज हैव सम मैजिक बडीज रेडी। Magic buddies are people who are into this, and also who are ready to listen to you, who are on the same wavelength. Basically your best friends, your school friends, your अभी के friends, जो भी है आपके, your mom, your dad, anyone can be your magic buddy. It's not necessarily your husband, it's not necessarily that कोई आपका दोस्त ही होना चाहिए buddy आपका। कोई भी हो सकता है जो समझता है ये चीज को, जो इस बुक की प्रैक्टिस में आपको रख सकता है, जो आपको उसमें से बाहर निकाल सकता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि अगर हम नीचे गए हैं तो हम ऊपर जरूर जाएंगे, क्योंकि ओनली दैट मच कैन बी इंड्योर्ड, ओनली दैट मच। अगर आप टॉप में हैं तो आप नीचे आओगे, अगर आप बॉटम में हो तो आप ऊपर जाओगे ही जाओगे। अनरिटन रूल है यूनिवर्स का, अनरिटन रूल। नाउ टू मेंटेन योरसेल्फ ऑन द टॉप, there are two ways, we will talk about that. So one way is कि आपको अगर वहां पे रहना है तो आपके बडी का नहीं, आप किसी का भी फोन आया आपके पास में, एंड दे आर कंप्लेनिंग अबाउट सम सिचुएशन, बट यू आर द पर्सन जो उसका कंप्लेनिंग स्टॉप करके उसे भी आप ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ द पर्सन की जो उसके कंप्लेन में अपने हाँ में हाँ मिला के खुद भी उसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो दिस इज हाउ यू डील विद दोज कंप्लेन्स।
आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, गॉसिप आप लोग कर रहे हो रात को बैठ के फैमिली के बारे में, तो ही इज सेइंग समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, फॉर हिज पीस ऑफ माइंड। तो आपको उस समय उन्हें समझाना है, ना कि उनके लेवल पे गिर के ही उनसे बात करनी है और उनके हाँ में हाँ मिलाना। तो दिस इज हाउ यू डील, दिस इज हाउ यू डील, you don't come down to anyone else level, then only you will maintain yourself at that place. So this is one thing, and the other thing is कि कोई भी हालत में आपको अगर टॉप पे रहना है तो आपको सब कुछ आसपास में आपको अपने तरफ हर वक्त पॉजिटिविटी ही रखना है, उसे मेंटेन करना है, कैसे भी करके उसे मेंटेन करना है, नहीं तो आप थोड़ा नीचे आओगे। तो अगर आप नीचे आ रहे हो और आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो तुरंत ऊपर जाने के लिए यू हैव टू वर्क। बॉटम टच ही मत करो, बॉटम टच ही मत करो, दैट शुड बी योर आज से, दैट शुड बी योर मतलब क्या बोलेंगे इसे, दैट शुड बी योर लुकआउट, यू डोंट टच द बॉटम, किसी भी सूरत में यू डोंट टच द बॉटम, यू हैव टू स्टे अबव द लाइन in all circumstances, in all situations. Yes. But I want to say one thing here, Mina. Like if you tell someone, people who are in this, in journey, they will understand. पर अगर तुम किसी और को समझाने की कोशिश करते हो कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, so they will say कि please, stop it. अपने lecture अपने पास रखो. So they are not ready to listen. So you can't. Yes. I don't. So I know that's the this. I thing. know this. See. That's so true. That's so true. Yeah, I Yeah. also agree. And best It I think happened with me. हाँ जो बताया था ना कि no need to first अपने आप को ही कर लो, no need to आपको जो ये push चीज नहीं on. समझता है, आपको उससे बात करने की इस बारे में जरूरत ही नहीं है, जरूरत अपना नहीं. मुंह बंद रखो एंड टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। सी, यू कैन ऑलवेज, कन्वर्सेशन किस तरफ मुड़ेगा, इट इज ऑलवेज इन योर हैंड, इट इज ऑलवेज इन योर हैंड। अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है और आप उसे नहीं समझा सकते हो, आप अपनी पॉजिटिव चीज शुरू कर दो। पीपल टेंड टू फॉलो, पीपल टेंड टू फॉलो, रैट रेस चलती रहती है, सबको एक दूसरे को फॉलो करना अच्छा लगता है। वहां पे अगर आप किसी ज्वेलरी की भी बात कर लो ना, अगर इट्स अ वुमेन गैदरिंग, तो पीपल विल स्टार्ट ऑन दैट टॉपिक, दे विल नॉट स्टॉप, दे आर लीस्ट। जैसे सपोज करिए आप एक गैदरिंग में बैठे हैं और वहां पे पॉलिटिक्स की कुछ बातें हो रही हैं, एंड नाउ there are certain people who are into this thing with you, there are certain people who are not into this thing with you. So now what, you don't want to discuss the political part, you know कि it's not going to help you in any way. तो जो चीज में आपको इंटरेस्ट है, कपड़े के बारे में, फैशन के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, जो जिसमें आपको पता है कि यू कांट टॉक नेगेटिव समवॉट, लाइक सबसे बेस्ट होता है ज्वेलरी के बारे में बात करना है, इस मामले में कपड़े के बारे में बात करना। यू कैन स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम टॉकिंग बिकॉज more people will be interested in talking about all these things. अपने बच्चों के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन फिर अगेन वही चीज है, आप मुझे बोलोगे कि उसके बारे में भी तो हम नेगेटिव बात कर सकते हैं, अगेन चेंज द टॉपिक। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, जस्ट वॉक आउट। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, जस्ट वॉक आउट। बाथरूम चले जाओ, पानी पीने चले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, वहां से उठ के चले जाओ, आपका ध्यान अपना आपके हाथ में है, उसे चेंज कर लो, उसे डेविएट कर लो। समटाइम्स यू कैन नॉट अवॉइड। तो ये बुक आपको आगे चल के 51% का फॉर्मूला भी देगी। जस्ट कीप योरसेल्फ इन द बुक, जस्ट बुक के पास में सब चीजों के, सब क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आप लोगों के। आपने क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है, आपको जवाब जरूर मिलेगा। इन दोज केसेस व्हाट यू कैन डू, इट विल कम। ओके, यस। It's not a fluke or an accident that good feelings feel amazing and that bad feelings feel really bad. Love is the supreme ruling power of life, and it calls you and attracts you through your good feelings. So you will live the life you are meant to live. Love always calls you through your bad feelings because they tell you that you are disconnected from the positive force of life. So ये कोई एक्सीडेंट या फ्लूक नहीं होता है कि गुड फीलिंग्स आपको अमेजिंग फील कराते हैं एंड बैड फीलिंग्स आपको खराब फील कराता है। इट इज ये सब लव के कारण होता है। जब आप सी, गुड फीलिंग्स कम बिकॉज ऑफ लव, बैड फीलिंग्स कम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लव। ये एक फॉर्मूला है, ये मतलब अनरिटन रूल है कि आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप इसके बारे में कभी पढ़े नहीं हो, लेकिन इट हैपेंस लाइक दैट ओनली।
It has been happening like that only. अब अगर मैं आपको बोलूं कि आज my husband was so cooperative, श्री आज बहुत cooperative थे, वो एक सेकंड में उठ गए, सब कुछ उन्होंने कर दिया, and he tried his best and he gave me back my device in some matter of minutes. अब यही जरूरी नहीं है कि वो हर दिन ऐसे ही रहे, हो सकता है कि कल वो उनका मूड ऑफ हो कोई और रीजन के कारण, and when I ask him to do this, he might not do it. He might tell me ki find an alternative or yourself. I am busy right now, or I will look at it afterwards. I can tell you this because राघव मेरे साथ यही करता है. उसको 12:25 से 1 o'clock he is free. उसका स्कूल नहीं रहता है. लेकिन I cannot ask him to upload the video at that time because he has told me very clearly कि मम्मा आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा लेकिन 2 बजे के बाद. मैं 12:25 से 1 नहीं करूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलूंगा. तो आई डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव. उसका मूड था, उसने डिसाइड किया. तो दैट डजंट मीन दैट आई विल गिव हिम बैड फीलिंग्स कि तुम ऐसे बच्चे हो, तुम्हारे पास टाइम है लेकिन तुम कर नहीं रहे हो. क्यों? सिर्फ मेरा काम है, इसके लिए आई शुड टेल हिम ऑल दिस थिंग्स. तो आपको कभी जिनको आप प्यार दे रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिनको आप प्यार दे रहे हो जरूरी नहीं है कि वो भी आपको रिटर्न में प्यार ही देंगे. वो उनकी जो मिक्स फीलिंग्स है, कभी अच्छी कभी बुरी, वो सब आपको आएगी. तो जरूरी है कि आप अपने आप को मेंटेन करो उस फीलिंग में, बिकॉज लव इज द सुप्रीम पावर. उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, एंड इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट बैक. अगर सामने वाला थोड़ा नीचे जा भी रहा है तो वो वापस खिंच के आएगा आपके प्यार से. दिस इज व्हाट वी सी आल्सो. तो वो वापस खिंच के आएगा ही आएगा. अगर आप पैसे को प्यार दे रहे हो, देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, तो कब तक आपसे रूठा रहेगा? इट विल कम बैक, इट विल कम बैक. दैट इज व्हाट विल हैपन. अगर आप अपने Hello. जॉब को, यस, हाय, It was उसने बोला done. No, it was totally, network was totally on the pause, so that's why I was oh, asking, okay. did you hear me? Yeah. Yeah, I can hear you very clearly. So right, yeah, I hope यहाँ तक clear है. So okay, let's move a bit forward. I know it's already 6:30. तो अगर किसी को जाना है तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. आप रिकॉर्डिंग देख के प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बिकॉज आई हैव टू मूव फॉरवर्ड अ लिटिल बिट. आई नो इट वाज माय ब्रेकडाउन जिसके कारण सबको थोड़ा इफेक्ट होगा, बट प्लीज प्लीज बी पेशेंस विद मी एंड हैव पेशेंस विद मी. यस, everything is about Everything is about how you feel. Everything in life is about how you feel. Every decision you make in your life is based on how you feel. The single motivating power of your entire life is your feelings. See, again they are saying, just a second, again they are saying कि सब कुछ जो आपके लाइफ में होता है वो आपकी फीलिंग्स के कारण होता है. आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपकी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. आपके और मेरे डिफरेंट सेम इमोशंस होंगे, लेकिन उसमें से जो फीलिंग आएगी डिपेंड्स. वो डिफरेंट फीलिंग्स आ सकती है. कोई चीज के लिए आप अलग फील करोगे, उसी चीज के लिए मैं अलग फील करूंगी. दिस इज व्हाट नाउ इट विल कम. लेकिन आपको हमेशा गुड फीलिंग्स में क्यों रहना है और इससे क्या होता है, दैट अगेन वी विल अंडरस्टैंड. आपको लग रहा होगा कि कितना रिपीटेशंस है, कितना एक ही बात को हम बार बार पढ़ रहे हैं. जैसे लास्ट चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर वाज अबाउट दैट यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव thought process, and now it is all about your positive feelings. So वो द बुक आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है आगे बढ़ने से पहले कि क्यों पॉजिटिविटी इज इम्पोर्टेंट. हर एक तरीके से मूड घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पे लाके वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है. तो रिपीटेशंस नहीं है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट वेज कि कैसे कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स में, पॉजिटिव सोच में किस किस तरीके से हम रह सकते हैं. यस, हर लाइफ में अगर आप लाइफ का हर डिसीजन जो भी आप लेते हो वो आपकी फीलिंग्स पे बेस्ड होता है. ये है इस पैराग्राफ का सारांश कि आप जो भी डिसीजन अपने लाइफ में लेते हो वो आपकी फीलिंग्स पे बेस्ड होता है कि नहीं. आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपकी फीलिंग्स अच्छी आ रही है, तो आप यहाँ पे आके बैठे हो, राइट?
सुबह इतना मेरे साथ में पेशेंटली आप बेयर कर रहे हो मेरे ब्रेकडाउन्स को, कि नहीं मुझे सुनना है आगे मृणाल क्या बोलती है, मुझे पावर बुक समझनी है। आपकी फीलिंग्स क्या है इस समय, राइट नाउ हाउ यू आर फीलिंग बिला जी? Yeah, feeling very good, very nice, very light, happy. दिस इज द यू आपका दिन जो है वो, आई सपोज कि जब आप सुबह ये कर लेते हो तो आपका दिन पूरा मोर और लेस इट इज ऑन द Positive. यस पॉजिटिव नोट, Yeah. मोर और लेस। ठीक है, आई विल नॉट से कि नेगेटिविटी नहीं आती है, बट मोर और लेस इट इज ऑन अ पॉजिटिव नोट। यहाँ पे अगर मैं हर एक को बोलूँ कि अपने आप को चेक करो एंड गिव मी आंसर कि राइट नाउ हाउ यू आर फीलिंग, तो हर एक कोई मुझे यही बोलेगा कि charged up है, there will be different words, the feelings will come out in different form of words, the emotions will come out in different type of feelings, लेकिन वो more or less एक ही तरीके की रहेगी कि towards a positive note, someone will be excited, someone will be joyful, someone will be grateful towards the sessions, towards the जो भी होगा it will be above the line की feeling। तो यही जो है मेरा वर्ड बोलूं क्या, सॉरी टू हाँ, इम्प्रूव, मेरा वर्ड yes हेमा जी दिल बोलिए। दिल डार्लिंग डार्लिंग रहता है मेरे को जब इधर आती तो। See, so you have made all of So us sweet. smile also. I can see Bela ji smiling, so I know everyone is smiling. So even I am smiling. So yes, this is setting the tone of your day. Please remember, please remember. इसीलिए हम gratitude लिखते हैं सुबह उठते ही. We count our blessings. इसीलिए this is the point. कि सुबह का time क्यों important होता है. People don't realize it. People don't realize it. They say, they complain. अगर आपको ये बोला गया था बचपन में अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, they knew about this, they knew about the power, they knew about the magic, that is why that came into being, that phrase came into being। आपको हमारे संस्कृति में तो कलकत्ता में तो ये होता था पुराने लाइफस्टाइल में कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू वेक अप एंड गो टू गंगा जी फॉर टू टेक अ बाथ, चल के घर से जाते थे या गाड़ी में जाते थे, वहाँ पे नहा के वापस आते थे घर पे, एंड समटाइम्स वी किड्स यूज्ड टू accompany him to have a bath with बनारस him। इज फेमस फॉर दैट, थैंक यू। Yes, आइए कभी। Banaras is famous for that, but Calcutta में मैं पली बड़ी हूँ तो I can connect to that place in so many ways। तो वहाँ की लाइफस्टाइल ठीक है, इनफैक्ट मेरे ससुराल से भी जाते थे, मेरे मेरे जो बाबा ससुर जी थे, मैंने सुना है यहाँ आने के बाद कि he was a regular at गंगा जी। तो you see those people, they knew about all these things, सूर्य भगवान को अर्घ देना and all that stuff। तो okay, we are deviating from the topic right now। it is all about how you feel, every decision in your life is based on how you feel, and the single motivating power is your feeling। So Yes, whatever you want in your life, you want it because you love it and because it will make you feel good. You don't want in your life, you don't want because it will make you feel bad. just a second। अगर आप स्पा जाना पसंद करते हो, अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर करना पसंद करते हो, तो it is not because you want to get it done to look beautiful, it is because you love also getting it done to look good। तो अगर आप मसाज कराना पसंद करते हो तो सेम रीजन। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो बहुत लोग होते हैं जिन्हें ट्रैवलिंग पसंद नहीं होती, वो घर में बैठे रहना पसंद करते हैं, तो उनको ट्रैवल पे लेके जाना इज टीडियस जॉब। तो जब आपको कोई चीज जब आपको अंदर से अच्छी लगती है तब आप उसे करना पसंद करते हो। सी समटाइम्स इट इज ऑल्सो कि आप मुझे बोलोगे कि मैं तो कुकिंग करती हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो you love your kids and husband, that is why you are cooking। तो ऐसे आप सोचना, ऐसे सोचना कि आप कुकिंग कर रहे हो तो there must be something which you are loving, because of that you are doing it। मुझे for my example I will give you, I don't like cooking as such। मुझे मतलब किचन के नाम से I get a bit ये नर्वस टाइप का फीलिंग होता है कि हर वक्त किचन 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 क्यों करना है, लेकिन स्टिल व्हेन आई मेक थिंग्स जो जब मन से बनाते हैं या जो
जो भी करती हूँ, नॉट नॉर्मल रसोई एंड ऑल, तो वो काफी अच्छी टर्न अप होती है। तो बिकॉज आई वांट दैट अप्रिशिएशन फ्रॉम माय इन लॉज एंड फ्रॉम माय हस्बैंड कि वाओ अच्छा डिश बना है। तो फॉर दैट लव, फॉर टू गेट दैट लव, आई एम पुटिंग माय लव इन द कुकिंग। सो यू सी, इफ but whatever you do, you have some kind of love from somewhere. That is why you are doing it, is what this means. You, whatever you want in your life, you want it because you love it and because it will make you feel good. जब मैं कुकिंग कर रही हूँ, even if I am not liking that part, I do cooking because I love my family members. I want them to be happy. I want them to be appreciating me, and I love that part of appreciation and their happiness. And that is why I love cooking also. I do the cooking as better as I can. I put my efforts in that, you can see. And direct love का भी बहुत सारा चीज. This is some kind of indirect love which I am explaining to you because that is also important. क्योंकि आपके मन में सवाल आएंगे ही आएंगे कि ये तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तो मैं क्यों कर रही हूँ और इसको करके मुझे अच्छा क्यों लग रहा है. The question will come is कि इसको करके मुझे अच्छा क्यों लग रहा है जब मुझे ये पसंद नहीं है. तो इसमें कुछ इनडायरेक्ट रीजन जरूर होगा जिसके कारण वो आपको अच्छा लग रहा है. Yes. You want health because it feels good to be healthy and it feels bad to be sick. You want money because it feels good to buy and do the things you love, and it feels bad when you can't. You want happy because they make you feel good and difficult relationships make you feel bad. You want happiness because happiness feels good and to be unhappy feels bad. यस, तो अब आपको मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलती हूँ कि आपको खाना खाना है. अब आप उसमें दाल चावल खा लो सिंपल सा, या पास्ता पिज्जा खा लो, या आपकी जो भी फेवरेट डिश है वो खाओ, आपका पेट तो भर ही रहा है ना दोनों केसेस में. तो व्हाई वी पीपल रन फॉर दैट क्यूजाइन थिंग्स एंड डिनर, मतलब लैविश डिनर्स एंड वो सब. व्हाई डू वी रन फॉर इट कि हाँ आज तो बाहर खाएंगे, आज ताज में जाके खाएंगे, आज शेराटन का बफे खाएंगे, आज पिज्जा खाएंगे. तो व्हाई वी ऑल डू दैट कि आपको सिंपल पानी पीने से भी तो आपका काम चल रहा है. इनफैक्ट पानी तो इज लाइक लाइफ सेवियर. पानी से स्ट्रांग तो कुछ भी है ही नहीं. अगर आप पेय ड्रिंक्स, मतलब अगर आप ड्रिंक्स में जाओ तो पानी से स्ट्रांग तो कुछ भी नहीं है. इसकी अपनी एनर्जी होती है. जो भी यहाँ पे मैजिक बुक्स और पावर बुक्स आए, दे ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसकी खुद की एनर्जी होती है. यू कैन कमांड वाटर टू डू एनीथिंग, बट स्टिल वी अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर. हम उसमें कुछ ना कुछ मिला के शरबत पी लेंगे, या फिर हम उसको कुछ भी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे. So why we are doing all that? Because we love that part. We love to have different taste of things. We love to, you know, give our taste buds different cuisines का taste. That is the whole difference. आपको अगर health है, you like to be healthy because you don't like to be unhealthy, right? ऐसे ही है कि आपको अगर पैसा आपके पास है तो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि you can shop according to your taste. You can go out, you can do whatever you want, you can party with your friends if you have money in your hands. और अगर आप ये सब पैसा नहीं है आपके पास में तो आप ये सब नहीं कर सकते हो. तो पैसा आपको अच्छा इसलिए फीलिंग दे रहा है क्योंकि आप उसके द्वारा कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपको खुश रखती है या जो आपको प्यार देती है, प्यार जगाती है आपके अंदर, टू बी प्रिसाइज. तो यही पूरा पैराग्राफ है. नाउ वी विल कम अक्रॉस 2 ड्राइंग्स, डायग्राम्स टाइप. मतलब जो ये है, दिस इज अबाउट बैड फीलिंग्स. बैड फीलिंग्स में यू कैन सी द काला डॉट इन द सेंटर and it is moving anti-clockwise. If you see the arrows, it is moving anti-clockwise. Bad feelings will happen when what you don't want, and then again bad feelings will give you more of what you don't want. So it's a circle. It is a circle, and it will go on and on. See, I forgot to mention पहले जब फेरिस व्हील का पार्ट हम पढ़ रहे थे, ये सर्कल से मुझे याद आ गया कि जीवन एक चक्र होता है. Life is a circle. It goes on and on and on. What you give come back to you. Again, what you give come back to you. What you gets back, you give that thing only. You give back that. अगर आपको प्यार मिलेगा तो आप प्यार दोगे. वो गाना है ना, प्यार दो प्यार लो. शाहबाज मूवी की है शायद, फिरोज खान एंड श्रीदेवी आर देयर, if I remember correctly.
तो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो आप उसमें उन्होंने बोला एग्जैक्टली प्यार दो प्यार लो, आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा। आप प्यार से इफ यू देयर इज अ लैक ऑफ लव यू विल गेट लैक ऑफ लव इन रिटर्न। तो ये ऐसे ही चलता है, आप बैड फीलिंग्स दोगे तो आपको वो चीजें मिलेगी जो आपको अच्छी नहीं लगती है, और जब आपको वो चीजें मिलेगी जो आपको अच्छी नहीं लगती है, you will create more of bad feelings, and when you create more of bad feelings, then again you will get more of what you don't want. So it is a cycle, it will go on repeating. So now you have to break this cycle, you have to break this cycle somehow, and that is what this all these practices we are doing helps us and to break that cycle. Yes, आगे देखते हैं। All the all the things you all the things you want are motivated by the good feelings they will give you. And how do you receive the good things you want in your life? Good feelings, dollars want you, health wants you, happiness wants you, all the things you love want you. They are bursting to come into your life, but you have to give good feelings to bring them to you. You don't have to battle and struggle to change the circumstances of your life. All you have to do is give love through good feelings, and what you want will appear. So now you can see यहाँ पे एक और drawing है जिसमें white light है बीच में, that is positivity. That black light was negativity, this is positivity. Now whatever this is moving in clockwise direction. तो हमेशा इनकी जो होती है ना, इनकी डायरेक्शन उल्टी रहती है। एक अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो गुड फीलिंग्स जो है वो आपको वो देता है जो आपको चाहिए। जब आपके पास में वो आ जाता है जो आपको चाहिए, तो आपके अंदर और गुड फीलिंग्स जनरेट होती है, और जब आपके अंदर और ज्यादा गुड फीलिंग्स जनरेट होती है तो आपको वो और मिलता है जो आपको चाहिए। बहुत सिंपल है, आप अभी तक में ये समझते आ रहे हो कि अगर आप पैसे गुड फीलिंग्स के साथ दे रहे हो तो आपके पास में पैसा घूम के आएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके अंदर और गुड फीलिंग्स जनरेट होगी। सपोज आपने 10 रुपए दिए किसी को विद गुड फीलिंग्स, एंड आपको उसके 100 रुपए तुरंत मिले कहीं से भी, किसी से भी। तो व्हेन यू गेट दैट 100 रुपीज यू विल बी वेरी हैप्पी कि वाओ आई एम गेटिंग 100 रुपीज बैक, आई कैन डू दिस एंड यू फील एक्साइटेड एंड यू आर एंथुसियास्टिक कि चलो आज हम जाके कुछ करेंगे 100 रुपए से। 100 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, आप उसे किसी भी अमाउंट से सब्स्टिट्यूट करके समझ लीजिए। तो आपको जब वो गुड फीलिंग्स दे रहा है तो आप क्या करोगे, उसे फिर किसी और को और दोगे। नाउ यू विल गिव दैट 100 रुपीज and then you will probably get 1,000 or 10,000 depending on the amount of good feelings. See, the money will come back to you. If you are giving money, the money will always return back to you. लेकिन the amount of money which returns back to you depends on your good feelings. जितना भर भर के आपने feelings दी है उस मात्रा में वो वापस आता है, उस multiplication में वो वापस आता है। अगर आपकी feelings बहुत अच्छी थी, बहुत ऊपर की थी, तो वो उसमें जीरोस कितने ऐड होंगे वो आपकी फीलिंग्स डिसाइड करती है। 10 रुपए आपके पास वापस आएंगे, लेकिन किस मात्रा में आएंगे इट डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स एंड योर फीलिंग्स ऑलवेज। ये मनी का एग्जांपल ना बेस्ट होता है ये सब समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दैट एग्जांपल। आप इसे किसी भी चीज में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपकी जॉब में, आपके रिलेशनशिप में, आपके कहीं पे भी। तो एवरीथिंग वांट्स टू कम टू यू। आप ये सोच लो कि आप ऑब्वियसली आपके बच्चे होंगे। अब जैसे मेरे पास राघव है, तो ऐसा क्या है जो मैं उसे नहीं देना चाहती हूँ। Just try to think from my perspective. There is nothing which I won't like to give my son. मैं चाहूंगी कि उससे मैं दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। मैं चाहूंगी कि मैं उसे दुनिया के हर वो गैजेट या whatever is right now is into gadgets, so I am taking that example. मैं चाहूंगी कि मैं उसे बेस्ट से बेस्ट दूं, बेस्ट से बेस्ट दूं। मैं चाहूंगी कि उसका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो लॉ के, मैं चाहूंगी कि वो बेस्ट लॉयर बने। तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव हिम द बेस्ट। वैसे ही हमारा यूनिवर्स है हमारे लिए में, उससे भी ऊपर है, माँ से भी अगर ऊपर कुछ है तो वो यूनिवर्स है। भगवान को ले लीजिए, जिनको जो भगवान को ग्रेटिट्यूड देते हैं, किसी भी गॉड को देते हैं, अपने किसी भी कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी या whoever you are following, that supreme power, whoever you are following, आप उन्हें रख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको देना नहीं चाहते हैं, आप उनके बच्चे हो। यूनिवर्स के लिए हम एक छोटी सी डॉट है, भगवान के लिए हम एक छोटी सी डॉट है। ऐसे बहुत सारे डॉट्स हैं और बहुत सारा चीज है यूनिवर्स के पास में देने के लिए।
वो कभी भी आपको पार्शियल करके नहीं देगा। माँ तो फिर भी अपने बच्चों में पार्शियलिटी कर लेती है। अगर उसके 2-3 बच्चे होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सी फेवरेट है माँ की। लेकिन यूनिवर्स या भगवान किसी को भी अपना पार्शियल नहीं बनाते हैं। दे गिव एंड व्हाटएवर यू वांट दे विल गिव यू। लेकिन उसके कुछ कुछ नियम होते हैं कि वो कैसे देंगे आपको। उसके कुछ नियम होते हैं, अगर हम वो नियम फॉलो करते हैं तो हमें वो फटाफट देंगे। ऐसे तो माँ भी नियम फॉलो कराती है, बच्चों को कभी कभी बोल देती है अगर ये करोगे तो ये मिलेगा। तो सेम वे है यूनिवर्स के साथ भी। तो ऑल द थिंग्स यू वांट आर मोटिवेटेड बाय द गुड फीलिंग्स दैट विल गिव यू। तो आपकी फीलिंग्स कैसी है यूनिवर्स वो देखता है। फिलहाल आपकी फीलिंग्स कैसी है यूनिवर्स वो देखता है और इस हिसाब से आपको देता है। तो जो चीज वो आपको देना चाहता है यूनिवर्स वो सब भी आपको चाहते हैं। जैसे अगर पैसे देना चाहता है यूनिवर्स आपको, अगर आप पैसे को चाहते हो तो पैसा भी आपको चाहता है, पैसा भी आपके पास आने के लिए रेडी बैठा है। बशर्ते कि आप गुड फीलिंग्स रखो उसके प्रति। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए अपने किसी भी प्रियजन के साथ में, तो वो भी आना चाहता है आपके पास में। That relationship wants to become better for you. Lekin then you have to put your effort, you have to put that good feelings inside that part. ऐसे ही अगर आप सेहत चाहते हो, if I want to lose my weight and I want to become 60 kgs or whatever the target is, so even that weight is waiting for me to come to me. It's waiting on the sidelines. लेकिन मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए, कैसी फीलिंग्स रख रही हूँ उसके लिए, that also depends and that then only it can come to me. तो यही चीज इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि you don't have to battle and struggle to change the circumstances of your life. All you have to do is to give love through good feelings. ये यही चीज हमें बोलना चाह रहा है बस, कि आपको स्ट्रगल नहीं करते रहना है, आपको गुड फीलिंग्स रखना है। आगे का पैराग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वी विल डू दैट एंड देन वी विल एंड फॉर द डे। यस। Your good feelings harness the force of love, the power to everything good in life. Your good feelings tell you this is the way to what you want. Your good feelings tell you that when you feel good, life will be good. But you have to give good feelings first. हाँ, तो If आपको पहले देना पड़ेगा। आप ये अगेन दैट अंगूठी वाला एग्जाम्पल, इफ यू रिमेम्बर, दिस एग्जाम्पल विल कम अगेन एंड अगेन इन द बुक। दैट इज व्हाई आई वाज होपिंग कि किसी ना किसी को याद आ जाए कि वो पैलेस बैटल के ऑडियो में आप लोगों ने सुना है, बट फॉर सम रीजन आप लोगों ने वो स्किप कर दिया। नो प्रॉब्लम, अगर फिर टाइम मिले कभी तो वो ऑडियो आप कभी भी सुनते रहो, कभी भी सुनते रहो। उसमें बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। मैं उस वो 40 मिनट्स का ऑडियो में आई कैन टेक 2 आवर्स से अबव टाइम टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट अगेन आई एम समटाइम्स आई एम नॉट हैप्पी कि 1 घंटा ही क्यों बोलना है। 30 आवर्स में दिस बुक कैन नॉट बी डन। In 30 hours this book cannot be done. If I am saying it is injustice on my part on this book, for this book, I am trying to explain this book in 30 hours. So let us see what we do. आगे बढ़ते बढ़ते how do we take it forward? So what I am saying is कि अगर अगर आप वेट कर रहे हो कि आप अंगीठी के पास बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कि ये मुझे वार्मथ क्यों नहीं दे रहा है, वार्मथ क्यों नहीं दे रहा है, तो ये आपकी गलती है। आपने उसमें आग जलाने के लिए क्या आपने उसमें ईंधन डाला है, क्या आपने लकड़ी या कोयला उसमें अंदर डाला है अंगीठी के अंदर? अगर नहीं डाला है तो वो आग कैसे देगी? और उसको डालने के बाद में आपको उसे आग को जलाना भी तो पड़ेगा। अगर आपने वो भी नहीं किया है तो वो आग कैसे देगी? तो वार्मथ कैसे देगी आपको? वो फायर कैसे लगेगा उसके अंदर में? तो सेम थिंग इज यहाँ पे वो वापस से बोलना चाह रहे हैं कि अगर कि आपको सबसे पहले प्यार या गुड फीलिंग्स देनी पड़ेगी उसे पाने के लिए। अब मैं यहाँ पे बैठी रहूं और मैं सोचती रहूं कि बिला जी मुझे बहुत सारा प्यार देगी और मैं अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रही हूँ उनको उनका प्यार पाने के लिए। आई एम जस्ट सिटिंग हियर डूइंग नथिंग। I'm just seeing her face. I'm not moving a finger. I'm not doing anything special for her, anything which is, showing my love to her, towards her. So why she will love me back? She will say, she will not even acknowledge me at that time because I am a nobody to her right at that time. So this is in relationship I am talking about. The same way you can talk about, you can think about in any field.
जिसमें भी हम डील कर रहे हैं, जैसे कि जॉब है, मनी है, हेल्थ एरिया है, अगर आप एफर्ट पुट नहीं कर रहे हो, अगर आपने ईंधन नहीं डाला है, फीलिंग्स का फ्यूल नहीं डाला है, तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स बैक. Whatever you might wait for a long time, but you will not see any results happening. Yes, if you have been leaving, ये पैराग्राफ में और बहुत सुंदर तरीके से समझाया जा रहा है. If you have been leaving, लीला जी. If you have been living your life saying to yourself, I will be happy when I have a better house. I will be happy when I get a job or promotion. I will be happy when the kids are through college. I will be happy when we have more money. I will be happy when I can travel. Or I will be happy when my business is a success. You will never have those things because your thoughts are defying the way love works. They are defying the law of attraction. बहुत अच्छे से यहाँ पे ये समझा दिया गया है हमें. अगर मैं आज बोलूं कि मुझे जब तक नया घर नहीं मिलेगा मैं तो खुश नहीं हो सकती हूँ, आई एम नॉट हैप्पी. मुझे पहले घर चाहिए तभी मैं खुश होंगी. जैसे कि आई एम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सपोज क्या करिए मैं रह रही हूँ, तो अगर मेरी थॉट्स ये है कि मुझे पहले नया घर चाहिए तभी मैं खुश हो पाऊंगी, यहाँ पे तो आई एम नॉट हैप्पी. मैं अपने हस्बैंड से रोज इस बारे में अगर कहाँ सुनी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट से फाइट, बट कहाँ सुनी कर रही हूँ, तो आई विल नेवर बी हैप्पी इन माई लाइफ. Because first I have to give love to this house to get a new house. I have to be happy in this house. I have to be satisfied in this house. I have to be above the line all the time. Then only I will get what I want. I will get what I want because I am defying the law of attraction. अगर मैं बोलती हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं खुश तभी होंगी जब मुझे नया घर मिलेगा, तो मेरा पुराना घर मुझसे खफा हो जाएगा. एंड दैट विल टेल मी कि भाई तुम तो यहाँ पे खुश नहीं हो, तो तुम्हें नया घर क्यों. यूनिवर्स बोलेगा कि तुम तो अपने जो तुम्हारे पास है उसी में तुम खुश नहीं हो, तो तुमको नया देके क्या करेंगे, तुम तो कभी खुश होगी नहीं. यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ. द सेम वे दिस ऑल एग्जांपल्स विल वर्क. I will be happy when I get a job or promotion. If you are not happy in your present job, if you are not giving your 100%, what is the guarantee that in your new job you will be giving your 100%? So universe will see what you are doing in the present scenario, and then they will refuse to give you that. Universe will refuse to give you. I will be happy when we have more money. तो आपके पास जितना है पहले उसमें तो खुश हो जाइए आप. जितना है पहले उसमें तो आप अपना जिंदगी बेहतर बना लीजिए. Because you are creating your own life, you are writing the story of your own life. पहले अपना जिंदगी उस हिसाब से बनाइए जितना आपके पास है, and then you will get more and more to make yourself more happy and happy. The same way, because when you are saying this, I am not happy right now, you are defying the law of attraction. If you are not happy right now, that means you are unhappy. If you are unhappy, that means you are attracting more of unhappiness towards you. As simple as that. If you are not happy, it means you are unhappy. And when you are unhappy, it means that you are attracting that more and more towards you. Yes, you have to be happy first. You have to be happy first and give happiness to receive happy things. It can't happen any other way because whatever you want to receive, you must give first. You are in command of your feelings, you are in command of your love, and the force of love will give back to you whatever you give out. So, जो मैंने बोला वो ये वापस से पैराग्राफ बोल रही है. आई डिडंट नो इट विल कम. थोड़ा सा मैंने जल्दी बोल दिया. तो अगर आप खुश हो पहले एंड आप खुशी दे रहे हो, तो अब आपको खुशियों से भरे सामान मिलेंगे जो आपको खुशी देंगे. अगर मैं खुश हूँ मेरे प्रेजेंट फोन से, then that universe will see that I get a new phone, whatever I am wanting or I have been waiting for. अगर मैं अपने प्रेजेंट लैपटॉप से हैप्पी हूँ, then I will get a better or a upgraded version of the laptop. But if I am always complaining that my laptop didn't work, it had a breakdown early in the morning, how was I supposed to log in, the Zoom didn't open up, मैंने इतने पैसे खर्च किए जूम के ऊपर लेकिन वो तो खुला ही नहीं जब टाइम आया तब, एंड माई इंटरनेट का जब हम लोग देते हैं तो वो वर्क क्यों नहीं करता है. if I'm complaining, if I'm not happy, if I'm somewhat being unhappy, so the things will go in the wrong direction. I won't be able to make them right.
with my that present framework of mind. Unhappy, अगर हम खुश नहीं है तो हम कोई भी चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे जो हमें खुशी देती हो. Simply put, if we are not happy, आप देख लो आपके आपके साथ क्या होता है दिन भर में. जब हम खुश नहीं होते और हमें कुछ करने को बोला जाता है तो कितने बेमन से हम वो काम करते हैं. मतलब इतना भी आ जाता है मन के अंदर में कि यार हम ही क्यों, मैं ही क्यों करूँ, दूसरे जन भी तो हैं, उनको क्यों नहीं बोल दिया ये करने के लिए, मुझे क्यों ऊपर नीचे करा रहे हैं. सब कुछ आता है मन में क्योंकि यू आर नॉट इन दैट मूड टू डू. तो वो आपको जब नहीं है तो आपको वो दूसरी चीजें भी जो आपको खुश करती है वो नहीं आएगी आपके पास में. यू हैव टू रिमेन above the line. You have to be happy to attract happiness. And the force of love will give you whatever you want to attract in your life. Whatever you give out, it will give you that back. That is the essence of the whole chapter. The chapter has ended here, and points of power जो है वो हम अब कल करेंगे. I see lot of people have already left. So the points of power we will do tomorrow. मुझे points of power भी आज खत्म करना था तो but it's already 7 now. So let us do our gratitude now. Yes, आज स्वाति जी पढ़ने वाले थे, right? Yes, I'm there. Actually, I just joined. जब आपने दोबारा ज्वाइन किया ना तो जिस मैं 2 minutes लेट ज्वाइन किया तब actually आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया because हर दिन वही होता था. But since I committed, I just took a decision कि आज तो मुझे ज्वाइन करना ही है चाहे कुछ भी हो. Okay, तो आप कुछ ऑनलाइन नहीं आ रहे थे? Yeah, because वही कोई दिन लेट सो रहे थे and I don't want to make excuses, but हाँ बहुत कुछ हो रहा था. Okay, no issues. There are breakdowns generally होते रहते हैं, तो it's okay. It's okay. But I'm So, glad I joined today. अच्छा, Bela ji, thank you for your wonderful reading, Bela Thank ji. you. I love Beautiful all my reading, readers. thank This you, time, thank matlab, you. I'm blessed to have wonderful readers for myself. And Power Book में you need wonderful and powerful readers. You need them. So I am very happy, Ruchika ji, और Rama ji. सब रमा जी, मतलब सब Thank कोई you. फर्स्ट जैसे they are reading so beautifully. मेरा मन खुश हो जाता है आप लोग को रीडिंग करते हुए देखकर एंड सुनकर. बेसिकली सुन के मुझे करेक्ट नहीं करना पड़ता है बीच बीच में. आई जनरली डोंट डू, आई जस्ट लेट इट गो बिकॉज फ्लो चला जाता है. बट बहुत दुख होता है कभी कभी जब रीडर्स इधर उधर कुछ भी पढ़ देते हैं. जब बुक खुली हुई है आपके सामने एंड स्टिल यू कैन नॉट रीड, it is depressing, actually depressing to see. But Mrinal, I'm taking these classes. I mean, I take these small children की उनकी reading की भी classes. Now it's a class for me too. yes, so it's like it's beautiful. And मैंने देखा रमा जी and Ruchika ji and Bela ji do their voice modulation also while reading, and that blows me over. मतलब I go like आप लोग को मैं सब नोटिस करती हूँ. Please remember, I notice everything. My always my comments will be positive for any reader, but I know where they make mistakes. I know what they are doing. So, but I just don't want to. You're a good teacher. You're a good instructor. Thank you. Yes. Thank you so much. So I love your reading. मुझे बोलना ही है ये. I love the readers this time. मतलब मुझे मेरा बस चले तो मैं आप लोगों को हर दिन कि आप लोग रीड कर लो. तो लेकिन because everyone should get the opportunity, and please डरिएगा मत. जो जैसा रीड करेगा they are most welcome. But yes, voice modulation makes reading takes the reading to another level. जब आप स्ट्रेस करते हो इटैलिक वर्ड्स को, जब आप कॉमास पे ध्यान देते हो, फुल स्टॉप पे पॉज करते हो, इट गिव्स अ चांस टू थिंक आल्सो टू यू, and it gives the like me also, it gives me also time to think and ponder. It is very necessary. लेकिन हम ये सब चीज स्कूल में करने के बाद, मतलब स्कूल में भी ठीक से सिखाया नहीं गया था हम लोगों को, but still my school was quite I had a very good English teacher. I'm
हमारी जो टीचर थी इंग्लिश की, हम लोग को 10 तक पढ़ाया उसने. There is no one. Yeah, Madhuri is there from my school right now, and Miss Sachdev was. I am grateful for her. जो इंग्लिश की नॉलेज मेरे पास में है सब उनके कारण है. Which school, जो Mrinal? MB गर्ल्स हायर सेकेंडरी, अब वो वर्ल्ड एकेडमी बन गई है. सेम स्कूल, रमाजी, तुलसी एंड मी. We all I are didn't from same. remember. Yes. I'm from Lamatnia. Yeah, Kolkata. Arts for girls, yeah, right. I So know. see, for English, for that kind of school, जो कॉन्वेंट स्कूल्स थे उनके पास में ये बून था कि उनको ये सब चीज पता नहीं कैसे अपने आप आती थी. हमारे स्कूल्स में जो बिल्डर्स की स्कूल थी उसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि इंग्लिश बोलना वाज लाइक इशू, मतलब हिंदी में ही बात करना है. हमारे स्कूल में एक बॉक्स रखा गया था थोड़े दिन तक कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो उसमें फाइन देनी पड़ेगी, लेकिन कोई सुनता नहीं था. प्लस आई ऑल्सो हैड इंग्लिश ट्यूटर एट होम फॉर लाइक 5-6 years. मेरे दादाजी को बहुत पसंद था. बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि आई नो माई पैसिव एक्टिव वॉइसेस, आई नो माई degrees, I know my tenses, everything I know very well. I've been taught in for 5-7 years. I've been studying English as a language, and newspaper पढ़ के हमारे जो टीचर थे घर के, वो हमें एकदम पक्का कर दिए थे वर्ड्स में. So it's a beautiful language. The Hindi is famous also very beautiful. Renan and Martin. The famous Right. Renan and Martin. Renan Martin was my handbook for many years. Exactly. Ren and Martin. I still Oh. have it. I still have it in Yeah. I have my son's small Ren library. and Martin now. My son even refused to look at it. बोलता है क्या ये? What is the point of having this? I said it is your wish. Nowadays the children, they have everything on their hands, na? The Google and everything. They're not even bothered about the books, literally. But my elder Thanks son, to of these course, convent schools, definitely the Renan and Martin, the teachers. This Renan Martin and Student Companion was again prescribed by us by our teachers. So that school teacher, and वो बहुत मतलब she was great. Like she's still there in the school, and she मतलब English में उनका कोई है ही नहीं. वो हमसे spellings लिखाती थी 100 times. अगर हम wrong लिखते थे तो हमारा जो सेक्शन था, मतलब we were in love with her, all of us, and she was there for us from 6 to 10. कभी एक बार बीच में चेंज हुई थी तो हम लोगों ने जो चेंज होके आई थी उसे भगा दिया. एक ललिता इज ऑल्सो देयर, इवन शी विल रिमेम्बर मिस सचदेव. तो हम लोगों ने जो दूसरी टीचर आई थी उसको भगा दिया था. शी लेफ्ट अस इन 1 month एंड मिस सचदेव केम बैक टू अस इन क्लास 8 या 7 की बात है कि हम लोगों ने came part time actually. That teacher came part time. No, Mrs. Sanyal came. No, Mrs. Sanyal was there. Part time Three only, sections. and then Sachdev came back again. She was the ऐसा था. best teacher. For all of us, जो भी हमारे स्कूल से हमारे क्लास का है, वो उसको बिना ग्रेटिट्यूड दिए आगे बढ़ ही नहीं सकता है. That was her power in teaching us English. जो भी इंग्लिश का नॉलेज है या इंग्लिश का है, it's because of her. रीडिंग वो हम लोग जैसे कराती थी तो मतलब ऐसे ही हम लोग को करना पड़ता था उसकी क्लास में. We had to do that. And picture reading even, मतलब क्या नहीं कराया उसने हमसे, क्या नहीं कराया. And we were blessed to have her. Not from being from a convent school also. I proud myself, like, you know, I am egoistic about my English knowledge. I am a bit egoistic. मेरे अंदर है थोड़ा, तो I can't help it. Yes, but now I give quite a lot of weightage to Hindi also. पहले नहीं था मेरे अंदर हिंदी के लिए प्यार, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी पैदा हो गया है कि हाँ, हिंदी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज. नाउ बहुत हो गई ये बातें. अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, और आई हैवंट स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑल्सो.